And we are going to begin with some breaking updates that we are getting for you from Sambhal. We are getting live visuals. Rang Ekadashi begins in Sambhal under police security cover. And we will be getting you the live visuals of how the senior cops there are overseeing the preparations. And there you can see visuals on your screen. Security has been beefed up. In fact, this procession will pass through many areas of Sambhal. Locals carry out this procession with much fanfare, just like what we see happening in Vrindavan ahead of Holi. Sambhal has literally turned into a fortress. Let's cut across to my colleague Gaurav. We will be going across to him, who will get us the live updates from Sambhal of this procession that is currently underway in Sambhal. And those are the visuals that we are bringing for you right now. Rang Ekadashi has begun in Sambhal, and that too under a strict police security cover. And there we can see cops ensuring that nothing untoward happens as this procession moves. This procession, we are learning, is going to cover several areas of Sambhal, and it's the locals, the people who live in this area, who are part of this procession ahead of Holi. And Sambhal for this has virtually turned into a fortress. There is a lot of security that is in place so that nothing untoward happens. Pradeep Datta is live with us right now. Pradeep, over to you. Take us through what's really happening right now. Yes, you rightly said that a heavy security deployment has been made at different points to ensure that no untoward incident takes place, because Rang Ekadashi is being celebrated with full zeal and fervor, and this Shobha Yatra is going to move through several lanes and by-lanes. They will try to ensure that nothing untoward happens, because all these precautionary measures are taken, reason being that we saw that what really happened on November 24th when the survey was being conducted in Jama Masjid Mosque. That was the time when stone pelting took place. After that, some people from within the mob, they had opened fire. That led to the death of 4 people. And since then we have seen that the security deployment in Sambhal is obviously more than what used to be there in previous days. But today is the Ekadashi and Rang Ekadashi, and full Shobha Yatra is moving, and people, this Shobha Yatra will be moving from different lanes and by-lanes. And already people had been asked to ensure peace and communal harmony in this region. We have seen that even the people from the Pradeep, I'm just interrupting you there. In fact, Gaurav, my colleague, is live right now from Sambhal and he's joining us. Gaurav, over to you. बताइए क्या हो रहा है आसपास? बिल्कुल, अभी आप देखिए तस्वीरें। इस वक्त हम उस कोट मोहल्ले में गुजर रहे हैं जहां पर शाही जामा मस्जिद चंद कदमों की दूरी पर मौजूद है। और आप देखें तो मौके पर यहां पर खुद जो संभल जिले के एसपी श्रीचंद हैं वो मौजूद हैं। तमाम सुरक्षा बल यहां पर मौजूद है। एसपी साहब, इस वक्त हम लाइव है टाइम्स नाउ पर। ये जो शाही जामा मस्जिद के बिल्कुल करीब के इलाके में जहां ये हिंदू आबादी बस्ती है, इस वक्त ये शोभा यात्रा निकल रही, किस तरह की पुलिस तैयारियां की गई हैं इस बार? रंग एकादशी में जो संभल पे शोभा यात्रा निकल रही है, पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है और सकुशल जुलूस संपन्न कराया जा रहा है और लोगों में उत्साह है, उत्साह के साथ जुलूस संपन्न हो रहा है। चलिए, तो संपन्न हो रहा है। और आप देखिए यहाँ पर पीछे एक बड़ा जुलूस आपको आता हुआ तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। और यहाँ पर ये वो इलाके हैं जिसे कि कोट पूर्वी का मोहल्ला कहा जाता है। शाही जामा मस्जिद से ये सटा हुआ इलाका है और यहाँ पर परंपरा रही है कि होली से 4 दिन पहले रंग एकादशी के दिन जो है वो एक बड़ा जुलूस निकलता है। ऐसा ही जुलूस हम ब्रज क्षेत्र में, वृंदावन में भी देखते हैं और ऐसी ही परंपरा कई दशकों से संभल जिले में भी जो है मौजूद है और मौजूद रही है। और ये तस्वीरें इस वक्त दिखाती हैं कि किस तरीके से जो हालात यहाँ पर रहे हैं पिछले समय में वो बदले हैं। और इस वक्त फूलों से जो है वो लोग स्वागत कर रहे हैं और ये एकदम तकरीबन 50 कदम की दूरी पर इस वक्त जो है हम तस्वीरों में मौजूद हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त ये दिखा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर ये तस्वीरें यहाँ पर दिखाती हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ पर रंग एकादशी के दिन रंग खेलते हुए और फूलों से लोगों का स्वागत करते हुए तस्वीरों में नजर आ रहा है। और एक बड़ा जुलूस पीछे तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा और लोग यहाँ पर लगातार जो है वो इस वक्त इसका स्वागत कर रहे हैं और चंद कदमों की दूरी पर। और ये अगर आपको मोहल्ला दिखा दूं तो ये वो मोहल्ला है जब 24 नवंबर को हिंसा हुई थी तो इस सड़कों पर सिर्फ चारों तरफ पत्थर ही पत्थर जो है वो तस्वीरों में नजर आ रहे थे। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोग
महिलाओं हो चाहे पुरुष हो, सभी होली खेलते हुए और यहाँ पर रंगों में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। लोगों से बात भी कर लेते हैं, कैसा लग रहा है इस बार होली में? बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों ने कहा कि महिलाएं पहले इतनी बड़ी संख्या में शामिल नहीं होती थी यात्रा में, इस बार यात्रा में भी शामिल हो रही जी, हैं। सुरक्षा व्यवस्था का माहौल बिल्कुल बदला, बहुत अच्छा है। तो ये सुरक्षा व्यवस्था का माहौल बदला है, तस्वीर बदली है और लोग यहाँ पर इस वक्त आपको जुलूस करते हुए, निकालते हुए तस्वीरों में इस वक्त जो है वो नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरीके से और ये तस्वीर हाँ तो ये देखिए लोग जो है इस वक्त जुलूसों में जय करते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं आपको उधर दूसरी तरफ दिखा दूं कि यहाँ पर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अब वो रास्ता है, ये वो रास्ता है जहाँ से संभल शाही जामा मस्जिद का रास्ता जो है वो शुरू होता है। और इस मस्जिद के पास अब ये जुलूस जो है वो निकल रहा है। और ये शाही जामा मस्जिद का इलाका जो उस वक्त के रात दिन का अगर आप देखें तो वहाँ पर उस वक्त एक ऐसा माहौल बना हुआ था, तमाम कानून व्यवस्था की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई थी। अब वो स्थिति, वो तस्वीर आपको यहाँ पर बदली हुई नजर आ रही होगी और बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में। ये बताइए कि आप हिंदू लोग मानते हैं कि यहाँ पर हरिहर मंदिर है, फिलहाल यात्रा यहाँ से गुजर रही है, प्रशासन का पूरा सहयोग है जी, क्या कहेंगे आप? क्या कैसा लग रहा है इस बार, किस तरह बहुत का? बढ़िया लग रहा है। तो आप देखिए तमाम लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट देखिए, वो यहाँ पर जो है वो आरआरएफ के जवान मौजूद हैं, यूपी पुलिस के जवान मौजूद हैं और खुद तमाम जो अगर आप देखिए तो सी अनुज चौधरी और तस्वीरों में आपको वो तमाम लोग। तो अब ये कोट मोहल्ला, और मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर तस्वीरों में इस वक्त अगर आप देखें तो ये जो रास्ता है वो शाही जामा मस्जिद की तरफ जाता है, जो कि ये रास्ता पूरी तरीके से बैरिकेड किया गया ताकि किसी को भी कोई तरह की दिक्कत ना हो। लोगों ने एहतियातन दुकान बंद की है, लेकिन यहाँ पर बाकायदा एक सुरक्षा घेरा बनाया गया है और इस सुरक्षा घेरे के बीच में से फिलहाल जो है वो जाता हुआ जुलूस, ये जुलूस आता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ से ये कोट मोहल्ले की तरफ आगे बढ़ेगा और यहाँ पर बाकायदा फूलों से, रंगों से, गुलाल से लोगों का जो स्वागत है वो तस्वीरों में फिलहाल होता हुआ आप देख रहे होंगे। जी गौरव, हम ये तस्वीरें देख रहे हैं where we can see this procession which is called as Rangbhari Ekadashi that happens 4 days before Holi, and this procession is usually taken out. And as you correctly mentioned, it's the same area, Gaurav, which saw violence on 24th of November last year, and that is the reason why the cops there do not want to take any chances. और इसीलिए हम देख रहे हैं कि भारी मात्रा में वहां पर पुलिस ऑफिसर, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो तैनात हैं, वो सब लगे हुए हैं ताकि सारी स्थिति जो है पीसफुल रहे वहां पर। और इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से इस बात पर भी पॉलिटिक्स जो है हो चुकी है। थोड़ा सा इस प्रोसेशन के बारे में हमें बताइए, क्या पहले से कोई ऐलान किया गया था पुलिस की तरफ से कि ये प्रोसेशन निकलने वाला है तो सभी लोग अपने घर में रहे? घर में रहने के लिए किसी को नहीं कहा गया है। प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि जो शामिल होना होता चाहते हैं वो शामिल हो, जो नहीं शामिल होना चाहते हैं वो बचकर निकलें, क्योंकि देखिए रंग एकादशी है, रंग पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अक्रॉस द रिलीजन जो रंग नहीं खेलते हैं, रंगों से उन्हें परहेज होता है, तो वो अपने घरों में, आप यहाँ पर तमाम लोग देखें जो बिना रंगों के भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। ये मोहल्ला जो है, ये जो रास्ता है, ये कोट मोहल्ले में जाता है जो सीधे शाही जामा मस्जिद का रास्ता है। यहाँ पर भी बहुत लोग बिना रंग के भी नजर आएंगे, क्योंकि जितनी देर की ये यात्रा निकलती है बिल्कुल 4 घंटे में वहाँ पर लोग जो हैं वो आपको नहीं नजर आएंगे। लेकिन ये जो तस्वीरें दिखा रही हैं वो तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि लोग पिछले सालों की तुलना में ज्यादा बड़ी संख्या में इस वक्त हर्ष उल्लास के साथ, और सबसे बड़ी बात इस बार महिलाओं की भी मौजूदगी है। महिलाएं जो हैं इस तरह के जुलूस में नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस बार जिस तरीके का सुरक्षा घेरा संभल में दिया गया है, इससे लोगों के मन में भरोसा पैदा हुआ कि न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं, बच्चों के साथ लड़कियां, वो सभी इस जुलूस में शामिल हो सकते हैं। और फिलहाल जुलूस जो है वो इस वक्त धीमे धीमे कोट मोहल्ले की तरफ जो है वो बढ़ता हुआ तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा। और आप देखिए खुद सीओ अनुज चौधरी हो, चाहे एसपी श्रीचंद हो, चाहे एसडीएम हो, उन सभी की मौजूदगी आपको तस्वीरों में इस वक्त जो काफी है इंटरेस्टिंग तस्वीरें हमें दिख रही हैं गौरव। एक तरफ तो ये प्रोसेशन निकल रहा है जहां पर पुलिस के अधिकारी भी नजर आ रहे हैं, वहीं पे देख रहे हैं हम लोग अपने घरों से
निकल के पुलिस ऑफिसर्स हो या फिर जुलूस में शामिल हुए लोग हों, सबको चाय भी बांट रहे हैं. एंड इट लुक्स लाइक a peaceful thing that we are seeing on the streets there right now. And tell us a little bit more. अगर आप किसी अधिकारी से बात कर सके, इस प्रोसेशन के बारे में हमें थोड़ा सा और बता सके, लोगों से बात करके, जैसे आपने महिलाओं से भी बात की, उनको काफी सुरक्षित महसूस हो रहा है, तो इसीलिए भारी संख्या में इस साल जो है महिलाएं भी नजर आ रही हैं इस प्रोसेशन में, बच्चे भी नजर आ रहे हैं और सुरक्षा की भी कोई कमी हमें दिख नहीं रही है. बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी. हम बात कर लेते हैं. माता जी, ये बताइए, क्या पहले इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं भी रहती थी जुलूस में? इस बार महिलाएं ज्यादा, इस बार महिलाएं बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हैं. महिलाओं का सम्मान ज्यादा है. हाँ, महिलाओं का सम्मान ज्यादा है. अब डर नहीं है मन में कोई? डर कुछ नहीं है. बेधड़क तो कभी डरी ना. बेधड़क लोग निकल रहे हैं. तो इस तरह लोगों की संख्या जो है वो आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी. Right, Gaurav, I'm just interrupting you there, requesting you to stay on with us. We have Vikram Singh, former UP DGP, joining us on the phone line as well. Mr. Singh, thank you very much for speaking with us here on Times Now. Your first reaction to these visuals that we are getting of a procession, which is of Rangbhari Ekadashi in Sambhal, crossing the area very, very close to Shahi Jama Masjid, and we can see women also in large numbers. There are children taking part in this procession. Looks all peaceful because there is enough security arrangement in place too. How will you like to respond? Holi to one and all, and having this kind of Rang Bhari Holi on Ekadashi day is a very welcome sign indeed. My greetings and good wishes to the district authorities for managing it so well, and I only hope it passes off peacefully and subscribes to the tradition and prescribed routes, prescribed timings, and prescribed installation of public address systems. When I say prescribed, because the Thana Festival Register prescribes the route, the timings, and also what one can do and what cannot do. We expect everyone to subscribe to the rule of law and the directions given by the local authorities. And with these words, I would say happy Holi to one and all. Right, Dr. Officers, Vikram Singh. Men and civilians. One more question before we let you go. You know, there was an appeal and a message of harmony that was in fact made by Sambhal Circle Officer Anuj Chaudhary, who had said the Friday namaz comes 52 times in a year, but Holi comes just once. If you're uncomfortable venturing out during Holi, stay indoors. And that led to a big political controversy as well. How will you like to respond to, you know, such things and the politics that happened around it? I would say that any appeal from any government officer, police especially, should be temperate, irrespective, and religion neutral. Religion neutral. When I say all festivals will be celebrated with festivity and peace, and the police are there to see to it that peace is maintained at all costs. And antisocial elements and criminals, if you know what is good for you, don't venture out of your burrow holes. Otherwise, there will be consequences for you. All right, Dr. Vikram Singh, appreciate you joining us here on Times Now and sharing with us your perspective. Now, viewers, as I was mentioning, the Friday namaz comes 52 times in a year, but Holi comes just once. If you're not comfortable venturing out during Holi, stay indoors. Now, this was the appeal and the message of harmony from Sambhal Circle Officer Anuj Chaudhary, and one that has landed him in an eye of a massive political storm. Not just because of what he said, but also because of the endorsement that he received from the UP Chief Minister. Listen in. होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है. तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले. और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है. डे और नाइट में तो काय कर रहा है सर. कोई डर तो नहीं लगता? हम पहले लड़ाई जब भी डरता रहा, हम यहीं थे जब भी. हाँ. कोई बचा हमें लड़ाई डर. आप लोग तो पानी पिला रहे थे सबको यहाँ पर. अब तो नहीं, हम पहले पूरी लड़ाई में यहीं थे. हाँ. बहुत अच्छा लगता है. अच्छा लग रहा है. और आप देखिए वो लोग हैं जो हमारे दर्शक जुड़ रहे हों, ये वो बैरिकेटिंग है. यहाँ से इस इलाके में ये जो बाइफर्केशन किया गया है, दो हिस्सों में इस इलाके को बांटा गया है. इस बैरिकेटिंग से उस तरफ शाही जामा मस्जिद का वो इलाका जो कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वहां पर जो है बड़ी संख्या में पूरे सुरक्षा बल तैनात है. लेकिन चूंकि यात्रा उन इलाकों से गुजरती है जहां पर हिंदुओं की बसावट है, कोट मोहल्ला कहते हैं, इसके आसपास तमाम सारे प्राचीन कूप, मंदिर
ये रईसों वाला मंदिर है यहाँ पास में, और ये वो घर हैं। और मैं आपको बता दूं ये वो चौकी है जिसका निर्माण शुरू हुआ, जिसको सत्यव्रत चौकी नाम दिया गया है। यहाँ पर हिंसा के वक्त, दंगे के वक्त काफी भीड़ थी, लेकिन यहाँ पर अब उस ठीक जमीन पर पुलिस निर्माण करके यहाँ के लोगों में सुरक्षा का भरोसा पैदा कर दिया गया है योगी सरकार द्वारा। और ये वो मकान जो गवाह रहे हैं उन तमाम बदलावों के फिलहाल यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जो इस वक्त यहाँ के रहने वाले हैं, और तमाम लोगों से हम बात करके भी आपको बताएंगे कि किस तरीके की तस्वीरें इस वक्त यहाँ पर जो है वो आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर इन तस्वीरों के जरिए ये भी बताएंगे कि किस तरह से माहौल जो है वो लोगों को बदला हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और ये कि तमाम स्थानीय लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं, और ये लोगों की मौजूदगी बताती है कि किस तरीके का माहौल बना हुआ। कैसा लग रहा है इस बार? बहुत बढ़िया लग रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो ये बताइए, ठीक मस्जिद विवादित ढांचा यहाँ बगल में है, माहौल में जो पहले मन में एक भय रहता था अभी भी है? अब नहीं है, इसमें पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा हाथ है, कोई भय नहीं है। बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। कैसा लग रहा है इस बार? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ पर तमाम लोग जो है वो मौजूद, माहौल इस बार कैसा है? यहाँ पर माहौल बहुत ही बढ़िया चल रहा है इस समय, प्रशासन के जरिए से बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। तो इस बार मन भर कर रंग खेल पाएंगे आप? मन भर के होली हो रही है अपनी, हमारी एकादशी बहुत ही बढ़िया निकली है। इस बार एकादशी बहुत अच्छी निकली है, जाहिर तौर पर लोगों के मन में डर रहा था, लेकिन इस बार आप देखिए ये वो इलाका जहाँ पर इस वक्त ये जुलूस आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। और यहाँ पर आप देखिए बड़ी संख्या में लोग नाचते झूमते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर सीओ अनुज चौधरी जो है वो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अनुज चौधरी की मौजूदगी से आम लोगों के मन में काफी ज्यादा भरोसा रहता है कि अगर किसी तरह का माहौल अगर खराब हुआ भी तो वो संभाल लिया जाएगा। हालांकि अब जिस तरह की कार्रवाई पुलिस ने की है, उन कार्रवाइयों के बाद जो है लोग जो है वो अब बेधड़क होकर इस वक्त होली मनाते हुए करते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और ये तस्वीर एक दूसरी तरफ शाही जामा मस्जिद आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी, और ये तस्वीर दिखाती है कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार लोगों के मन में जो भय था वो निकल चुका है। भय को हटाकर लोग लगातार जो है इस वक्त रंग खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये संभल का माहौल है। तमाम लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है, लोगों की मौजूदगी है, और लोग बड़ी संख्या में हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर रंग खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये रंगों का जो माहौल है वो लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। ये देखिए तमाम लोग यहाँ के स्थानीय लोग, कोट मोहल्ले के लोग इस वक्त होली खेल रहे हैं, और माहौल जाहिर तौर पर बदला हुआ है। लोग छतों पर हैं मौजूद, घरों में मौजूद हैं, गलियों में मौजूद है, और इन तंग गलियों से इस बार लोग जो है वो जुलूस, और खुद मौके पर सीओ अनुज चौधरी हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। और शेख शाही जामा मस्जिद के इलाके के पास का वो मोहल्ला, इलाके के पास का जो मोहल्ला है वो लोग यहाँ पर होली जो है वो खेल रहे हैं, वो खेले। ये बताइए तमाम देखिए अनुज चौधरी की मौजूदगी है, लोगों में बड़ी फैन फॉलोइंग है, लोगों में फैन फॉलोइंग है अनुज चौधरी की। लोग यहाँ पर देखिए यहाँ पर लगातार रंग खेलते हुए घूमते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कैसा लग रहा है माहौल? माहौल कैसा है इस बार? बहुत बढ़िया, बाबा के राज में आनंद ही आनंद है, बाबा के राज में आनंद ही आनंद है। लोगों के मन में पहले डर रहता था थोड़ा, बहुत ज्यादा डर था पहले, लेकिन अब नहीं। जब तक बाबा बैठे जब तक कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको दिखा दूं इधर इस तरफ जो आप जो मोहल्ला देख रहे हैं सीधा हिंदुओं के इलाके में जाता है, और दूसरी तरफ अंकित अगर इधर आए तो आप ये देखिए कि खुद थाना कोतवाली के जो SHO है वो इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। वो बड़ी संख्या में इस वक्त यहाँ मौजूद है, बड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो मौजूद है। और खुद थाना कोतवाली के जो SHO है अनुज कुमार तोमर अपने लोगों के साथ में इस विवादित स्थल के पास, जिसका जिक्र बार बार शाही जामा मस्जिद के तौर पर मुस्लिम पक्ष करता है, जिसको लेकर आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अगर आप देखें तो यहाँ पर लोगों की मौजूदगी है। और एक बार मैं बात करूंगा उन लोगों से भी जो इन मोहल्लों के पास में रहते हैं। ये वो घर है, और ये माता जी 24 नवंबर का दिन याद है मुझे, जब हिंसा चल रही थी, लोगों को पानी पिला रही थी पुलिस वालों को। कैसा लग रहा है आज माहौल? आज बढ़िया है, माहौल अच्छा है, पहले से बेहतर हुआ है? पहले से बेहतर है।
24 नवंबर को जो हाल था सबने देखा था, आपका पहला घर है बिल्कुल इस शाही जमा मस्जिद साल। अब माहौल में आपको कोई डर तो नहीं लगता? ना, अब नहीं कोई डर नहीं लगता, बढ़िया खुश इस है। बार होली धूमधाम से होगी? हाँ होगी। चलिए, तो इस बार होली धूमधाम से होगी। ये वो घर है, ये शाही जामा मस्जिद से सटा हुआ पहला घर, और यहाँ पर आप देखें तो बिल्कुल सख्त सुरक्षा का पहरा। और दूसरी तरफ आपको दिखाए तो यहाँ पर अंकित एक बार इधर आने की कोशिश करिएगा। तमाम वो जो हिंदू इलाके हैं जहाँ से जुलूस अब आपको तस्वीरों में जाता हुआ नजर आ रहा होगा, यहाँ से वो ये तस्वीरें जो हैं वो दिखाती हैं कि किस तरीके से बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में यहाँ पर लगातार रंग एकादशी का जो त्योहार है हिंदू, वो लगातार मनाते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और ये हर्ष है, उल्लास है, लोगों के मन में खुशी का माहौल है। और ये बड़ा जुलूस इस वक्त आपको तस्वीरों में जाता हुआ, आता हुआ लोगों Right, के so साथ जो है। that is the live update that my colleague Gaurav is bringing to us from Sambhal, where we can see how Holi Ekadashi, which is also called as Rang Bhari Ekadashi, that's being celebrated with great joy. But there is also a tight security cover that we are seeing. But what's interesting is that women, children, all have come out on the streets for celebrating Rang Ekadashi, age-old celebration. Tradition, in fact, still is continuing in Sambhal, in Uttar Pradesh. And things remain peaceful. That's the latest update that we have for you right now. We'll, of course, be keeping you ahead on this particular story. But for now, we will slip into a very, very short break. We'll be back with lots more. Don't go anywhere.